اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ القول فی التعارض ای التعارض الدعوی فی الاموال لو تداعیا ما فی ایدیہما فادعا کل واحد منہما المجموع ولا بینتا۔ توجہ فرمائیے، آج بحث ہماری اس میں ہے، گفتگو تعارض میں ہے۔ تعارض دعویٰ ہو رہا ہے اموال میں۔ دو بھائی ہیں، ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے، دونوں بھائی ایک گھر میں رہ رہے ہیں، دونوں بھائی بڑا چھوٹا ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ بڑا بھائی یہ کہتا ہے کہ یہ سارا گھر میرا ہے، چھوٹا بھائی کہتا ہے یہ سارا گھر میرا ہے۔ دعویٰ ہے، آپس میں جھگڑا ہے۔ اب یہاں کیا کرے قاضی صاحب؟ توجہ فرمائیے، آپ نے میں مثال اس میں بنا لی نا کہ ایک بڑا بھائی ہے ایک چھوٹا بھائی ہے اور وہ ایک گھر میں رہ رہے ہیں۔ بڑا بھائی یہ ادعا پیش کر رہا ہے کہ یہ مجموع، یہ سارا گھر میرا ہے، اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ کہتا ہے یہ سارا گھر میرا ہے۔ تو اب یہ کس کا ہے؟ کس کا گھر ہے؟ ٹھیک ہے، دوبارہ ایک گھر چھوٹا بھائی ہے بڑا بھائی ہے اس میں رہ رہے ہیں، وہ گھر دونوں کے تصرف میں ہے، لیکن چھوٹا بھائی کہتا ہے میرا گھر ہے سارا، بڑا کہتا ہے تیرا اس میں کوئی نہیں، میرا گھر ہے یہ۔ اور یہاں ان کے پاس کوئی بینہ بھی نہیں ہے، بینہ شاہد کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہاں کیا ہوگا؟ دونوں قسم کھائیں گے، ہر ایک کہے گا کہ تیرا حق نہیں ہے، دوسرا بھی اسی طرح قسم کھائے گا کہ تیرا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ دونوں قسم کھائیں گے اور وہ جو مال ہے وہ دونوں میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا، مال دونوں میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر یہ دونوں جن کے پاس شاہد وغیرہ نہیں ہے، اگر یہ دونوں قسم کھانے سے انکار کر دیں، قسم کھانے سے انکار کر دیں، پھر بھی یہ گھر دونوں کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن عزیزو، اگر ان دو بھائیوں میں ایک قسم کھائے اور دوسرا انکار کرے، دو بھائی بڑا چھوٹا مد نظر رکھو، ان میں ایک بھائی قسم کھائے کہ یہ میرا ہے، دوسرے کو کہیں قسم کھا تو وہ انکار کر دے، تو یہ گھر قسم کھانے والے کا ہے، یہ جو گھر ہے یہ حالف کا ہے، قسم کھانے والے کا ہے۔ اگر یمین، یہ جو قسم کھا رہا ہے وہ اس دوسرے کی نقول کے بعد ہو، یعنی ایک کو کہا قسم کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھاتا، اب یہ دوسرا بھائی جو قسم کھا رہا ہے اس دوسرے کے نقول کے بعد ہے، تو یہ قسم ایک قسم کھائے گا جو نفی اور اس بات کو جمع کرے گا، یعنی کہے گا یہ اس کا گھر نہیں ہے بلکہ میں قسم کھاتا ہوں یہ میرا گھر ہے، نفی اور اس بات کو جمع کرے گا ایک قسم کھا کر۔ لیکن اگر وہ جو یمین ہے اس نے پہلے کھائی ہے اور انکار قسم کا بندے دوسرے نے بعد میں کیا ہے، تو یہاں اس آدمی کو، ٹھیک ہے، ایک دوسری قسم بھی کھانی پڑتی ہے اس بات کے لیے، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ یہ میرا گھر ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اب اس کے بعد ایک دوسری صورت ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے،
लेकिन यहां भला क्या हुआ है, एक घर मैंने फर्ज किया है, उस घर के अंदर दो भाई रह रहे हैं, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, दोनों उसके घर में रहते हैं, दोनों के तसर्रुफ भी है। एक कहता है कि ये सारा घर मेरा है, दूसरा कहता है छोटा कि सारा घर ये मेरा है। यहां इन दोनों भाइयों के पास बैयना शाहिद गवाह नहीं है। यहां क्या करेंगे, दोनों भाई हालाफा दोनों कसम खाएंगे, हर एक ये कसम खाएगा कि तेरा हक नहीं है, दूसरा कसम खाएगा कि इसका हक नहीं है। जब कसम खा लेंगे तो ये जो माल है ये इनके दरमियान बराबर बराबर तकसीम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर एक भाई को कहें कसम खा, वो इनकार करता है, दूसरे को कहें कसम खा, वो भी इनकार करता है। जब दोनों कसम खाने से इनकार करें तो फिर भी ये घर दोनों के दरमियान बेसविया क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। लेकिन अगर इन दो में एक कसम खाए और दूसरा इनकार कर दे तो ये घर किसका होगा, हालिफ का होगा। जो कसम खाएगा उसका ये घर हो जाएगा। अब ये जो कसम खा रहा है एक बंदा, ये अगर उस दूसरे के नकूल के बाद है, यानी उस दूसरे को कहा कसम खाओ, उसने इनकार किया, अब ये उस दूसरे के नकूल और इनकार के बाद एक बंदा कसम खा रहा है, तो ये एक कसम खाएगा जो नफी और इस बात को जमा होगी, यानी कहेगा ये उसका घर नहीं है, मैं कसम खाता हूं ये मेरा घर है। ठीक है, वरना अगर इसने कसम पहले खाई हो और बाद में दूसरे को कहे वो इनकार कर जाए तो इस आदमी को एक और भी कसम खानी पड़ती है। ठीक हो गई आगे जान बात। अब फरमाते इसी तरह, अब अभी पहली सूरत हमारी ये थी कि बैयना नहीं है, बैयना नहीं है, ये छोटा बड़ा भाई जो घर में रह रहे हैं दोनों के पास बैयना नहीं था। अब हम यहां इस तरह बयान करने लगे हैं कि अगर बैयना हो, दोनों के पास बैयना हो और दोनों बैयना कायम करें, दोनों बैयना लेकर आ जाएं, तो अब क्या करेंगे, फरमाते हैं वो साइड, वो दो कमरे जिसमें छोटा भाई रह रहा है, ठीक है, वो बड़े भाई को दे देंगे और वो कमरे जिसमें बड़ा भाई रह रहा है वो छोटे को दे देंगे। यानी वो जो 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 किसी के हाथ में है वो दूसरे को दे देंगे और जो उसके हाथ में है वो उसको दे देंगे, यानी रद्दो बदल, इधर वाले उधर उधर वाले इधर, ये हो जाएंगे। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? जब दोनों भाइयों ने, भाइयों की मिसाल मैं लेकर चल रहा हूं ना, दोनों भाइयों ने जब बैयना लेकर आए हैं तो जो छोटा भाई रह रहा था वो बड़े को मिल जाएगा, बड़े वाला छोटे को मिल जाएगा। ये आगे पीछे क्यों हुआ है, तब्दीली उसी को रहते, कहते हैं बैयना खारिज को तरजीह देते हैं। ये बहस आएगी, बैयना खारिज होता है, एक बैयना दाखिल होता है, तो इस बिना पर के बैयना खारिज को तरजीह दी है तो ये फैसला हमने सुनाया है। बस दकीक तवज्जो करो, ठीक है। बैयना खारिज किया है, बैयना खारिज किया है, बैयना खारिज ये है कि जिस तरफ छोटा भाई मसलन जिन कमरों में रह रहा है, ठीक है, जो उसके तसर्रुफ भी हैं, ठीक है, तो वो कहलाता है बैयना दाखिल। और वो जो दूसरी साइड वाला जो भी उसके तसर्रुफ में ये घर नहीं है बल्कि वो दूसरी साइड पे रह रहा है, और ये छोटे भाई वाले कमरे बड़े के तो तसर्रुफ में नहीं है ना, ठीक है, तो वो बड़ा भाई एक छोटे भाई के कमरों की निस्बत बैयना खारिज कहलाता है। बड़ा भाई छोटे भाई के कमरों की निस्बत बैयना खारिज है। इसी तरह वो जो बड़े भाई के कमरे हैं वो रह रहा है, छोटा भाई उनकी निस्बत बैयना खारिज है। जब ऐसा है ना तो ये बैयना खारिज को तरजीह देते हैं और ये हुक्म लगाते हैं
कि जिन कमरों पर छोटा भाई रह रहा था, जिन कमरों में छोटा भाई रह रहा था, वो कमरे बड़े भाई को मिल जाएं, और जिन में बड़ा भाई रह रहा था वो छोटे को मिल जाएंगे, छोटे को मिल जाएंगे। तो ये अभी हमने ये समझे कि ये वो सूरत हमने ये पढ़ी है इसमें कि जिसमें दोनों का तसर्रुफ है। एक घर फर्द किया है हमने जिसमें दो आदमी बड़ा भाई छोटा भाई बनाए और वो उस घर में रह रहे हैं, वो उस घर में रह रहे थे और उनका आपस में झगड़ा है। एक कहता है सारा मेरा, दूसरा कहता है मेरा। तो इसमें उन दोनों के पास बय्यना वगैरह नहीं, बय्यना यानी दो आदिल गवाह नहीं है। तो हमने यहां भला क्या किया है, हमने कहा है दोनों कसम खाएंगे। क्या कसम? तेरा हक नहीं, वो कसम खाएगा तेरा हक नहीं, कसम दोनों खाएंगे, ये माल दोनों में बराबर तकसीम हो जाएगा। या अगर दोनों कसम नहीं खाते फिर भी बराबर तकसीम है, लेकिन अगर इनमें एक कसम खाए और एक ना खाए तो जिसने कसम खाई है उसका हो जाएगा। अब इसके बाद इसी मसले की दूसरी शिक कि अगर ये दोनों बय्यना को कायम कर दे, छोटा भाई बड़ा भाई, पिछली सूरत में बय्यना नहीं, अब अगर बय्यना लाते तो फरमाते हर एक को वो दिया जाएगा जो दूसरे के हाथ में है। छोटे भाई वाला घर बड़े को, बड़े वाला घर छोटे को मिल जाएगा, क्योंकि बय्यना खारिज को तरजीह दी है। ठीक है, यहां ले आता हूं, फिर मैं अगली बात करूंगा आपके लिए। तवज्जो फरमाइए। अल कौलो फी तारुज़, कौल और गुफ्तगू तारुज़ में है। ऐ तारुज़ दावा फिल अमवाल, तारुज़ दावा है अमवाल में, तारुज़ दावा है अमवाल में। लो तदाया माफी ऐदीहिमा, ठीक है, लो तदाया अगर दो आदमी दावा करें, माफी ऐदीहिमा जो दोनों के हाथों में है, दो आदमी दावा करें, फद्दा कुल्लो वाहिदिन मिनहुमा अल मजमुआ, उन दोनों में से हर एक इद्दा करता है मजमू का कि ये सारा मेरा है। वला बय्यनता, और बय्यना भी नहीं है। हलफा कुल्लो मिनहुमा अला नफी इस्तिकाकिल आखर, हलफा दोनों कसम खाएंगे, ठीक है, दूसरे के इस्तिका की नफी पर। हलफा दोनों कसम खाएं, कुल्लु मिनहुमा उन दोनों में हर एक क्या कसम खाएंगे, अला नफी इस्तिकाकिल आखर दूसरे के इस्तिका की नफी पर, कि दूसरे का हक नहीं है, ये तो मेरा है। दूसरा कहेगा तेरा नहीं मेरा है। वक्त समाहो बिसविया, और माल को बराबर क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। वकज़ा लो नकला अनिल यमीन, और इसी तरह लो नकला अनिल यमीन, अगर वो इनकार करें, लो नकला यानी ये दोनों भाई छोटा बड़ा भाई फर्ज करते हैं ना, मिसाल में समझने आसानी है। लो नकला अगर ये दोनों इनकार करें, अनिल यमीन कसम खाने से, कसम भी नहीं खाते, एक भी नहीं खाता दूसरा भी नहीं खाता, ठीक है, फिर भी जब दोनों इनकार करें फिर भी कज़ा यानी माल को दोनों में बराबर बराबर तकसीम कर लेंगे। वलो हलफा अहदुहुमा व नकल अल आखर, अगर उन दोनों में एक कसम खाए व नकल अल आखर और दूसरा इनकार करे, फहुवा लिल हालिफे, फहुवा वो घर, लिल हालिफे कसम खाने वाले के लिए है, वो घर कसम खाने वाले का है। फ़इन कानत यमीनुहु बाद नकूले साहिबिही, अगर इसका कसम खाना बाद नकूल साहिबिही
उस दूसरे साथी के नकूल के बाद साथी के नकूल के बाद अगर कसम खा रहा है, हलफ यमीनन वाहिदन तजमाउ नफी वल इस्बात, एक कसम खाएगा जो नफी और इस बात को क्या है जमा होगी, वो कसम नफी और इस बात पर जमा होगी, यानी कहेगा उसका माल नहीं है, अल्लाह की कसम मेरा है। व इल्ला इफ्तकरा इला यमीन उखरा लिल इस्बात, वरना एक दूसरी कसम की भी जरूरत है लिल इस्बात, साबित करने के लिए। ये इल्ला से क्या मुराद है, यानी अगर यमीन दूसरे के नकूल के बाद नहीं, यमीन बाद नकूल साहिब नहीं है, बल्कि पहले कसम खाई है, ठीक है, और बाद में दूसरे को कसम कही तो उसने इनकार किया है, ऐसी सूरत में इस बंदे को एक और भी कसम खानी है। इल्ला इफ्तकर इला यमीन उखरा, वरना इसको एक दूसरी कसम की भी खानी पड़ेगी इस बात के लिए। वकज़ा यक्तसिमान इन अकामा बय्यनतन व युक्ज़ा लिकुल्लि मिनहुमा बिमा फी यदि साहिबे, और इसी तरह यक्तसिमान यानी माल को तकसीम करेंगे, इसी तरह इन अकामा बय्यनतन, अगर ये दोनों बय्यना कायम करें, दोनों बय्यना कायम करें, व युक्ज़ा लिकुल्लि मिनहुमा बिमा फी यदि साहिबे, हुक्म लगाया जाएगा लिकुल्लि मिनहुमा, इनमें से हर एक के लिए क्या हुक्म लगेगा, बिमा फी यदि साहिबे, जो साहिब के हाथ में है वो इनके लिए हर एक के लिए हुक्म लगाया जाएगा। मैंने इसको समझाया था ना आपको, छोटे भाई वाला घर, बड़े को बड़े का छोटे को एक दूसरे को देना इन्होंने, बेनान अल्लाह तरजीह बय्यनतिल खारिज, बिना बारिश के बय्यना खारिज को तरजीह देकर। बय्यना खारिज क्या है, बय्यना खारिज आपकी खिदमत में छोटा भाई जिन घरों कमरों पे वो उसकी रिहाइश है, बड़े भाई के तो हाथ में नहीं है ना, बड़ा भाई छोटे भाई के कमरों की निस्बत बय्यना खारिज कहलाता है। इसी तरह बड़ा भाई जिन मकान में रह रहा है, छोटा भाई उनकी निस्बत, क्योंकि उसके तसर्रुफ में है वो कमरे, छोटा भाई बड़े भाई की निस्बत बय्यना खारिज कहलाता है, और जिनमें वो रह रहे हैं वो बय्यना दाखिल होता है। बिनान अला तरजीह बय्यनतिल खारिज, बिना बरस के बय्यना खारिज को तरजीह दें। वला फर्का होना बैन तसावील बय्यनतैन अददन व अदालतन व इख्तिलाफिहिमा, फर्क नहीं है यहां बैन तसावील बय्यनतैन, दोनों बय्यने अदद के लिहाज से मुसावी हूं, व अदालतन और अदालत के लिहाज से मुसावी हूं, व इख्तिलाफुमा इनमें उनका इख्तिलाफ हो, इसमें फर्क नहीं है। वला फर्क होना बैन तसावील बय्यनतैन अददन व अदालतन व इख्तिलाफिहिमा, इसमें फर्क नहीं है कि दोनों बय्यने अदद के लिहाज से मुसावी हूं, व अदालतन अदालत के लिहाज से, व इख्तिलाफिहिमा इनमें इख्तिलाफ हो, इसमें कोई फर्क नहीं है। ठीक हो गई भाई बात। ये कौल फी तारुज में ये पहली सूरत है कि दो आदमी इद्दा कर रहे हैं ऐसी चीज में जो उनके तसर्रुफ में भी है। एक घर को फर्द किया है जिसमें वो दोनों भाई रह रहे थे, उनके तसर्रुफ में था, ये पहली सूरत थी। दूसरी सूरत ये है वो छोटा बड़ा भाई मिसाल लेते हैं तो बेहतर है ना, वो छोटा बड़ा भाई एक घर में रह नहीं रहे हैं, उस पिछली सूरत में रह रहे थे दोनों, ये दोनों खारिज हैं, मकान अब किसी बंदे को दिया हुआ है, कोई और बंदा है जो मकान में रह रहा है, ये दोनों छोटा भाई और बड़ा भाई उस मकान में रह नहीं रहे, उस मकान में कोई और रह रहा है, और ये दोनों भाई जो उस मकान से बाहर हैं, इनके कब्जे में नहीं है, ये कहते हैं कि एक कहता है मेरा घर है सारा, दूसरा कहता है मेरा घर है सारा। अब यहां क्या करें, दो भाई छोटा बड़ा एक घर में
जो किसी के हाथ में मसलन वो रह रहा है, ये बाहर से आकर कहते हैं कि ये घर मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। अब ये किसका होगा? ये दोनों रह नहीं रहे उस मकान में, पिछले में रहे, पिछली सूरत में रह रहे थे, ख्याल करें पिछली से इसको। ये दोनों उस घर से बाहर हैं, कोई और बंदा वहां ठहरा हुआ है, शायद कोई किराए पे है, ये जैसे है। ये दो कहते हैं कि ये घर जो बंदा रह रहा है ना, ये मेरा है, दूसरा कहता है मेरा है। तो ये किसका होगा? फरमाते हैं ये उसका होगा जिसकी वो बंदा तस्दीक करेगा, जिसके हाथ में वो घर है, जिसके घर में वो बंदा रह रहा है। एक बंदा रह रहा है ना उस घर में, वो बंदा जिसकी तस्दीक कर देगा, बड़े को तस्दीक की कि ये बड़े का घर है तो बड़े का हो जाएगा, छोटे की तस्दीक की तो छोटे का हो जाएगा। यानी अब ये घर इस बंदे के हाथ में है, ये बंदा किसकी तस्दीक करता है, छोटे की या बड़े की? जिसकी तस्दीक करेगा ये घर उसका होगा। अलबत्ता कसम भी खानी है उस बंदे ने जिसकी तस्दीक होगी, जिसकी तस्दीक होगी। ये तीसरा बंदा जिसकी तस्दीक करेगा ना, बड़े की तो बड़ा, छोटे की तो छोटा, जिसकी तस्दीक करेगा ये बंदा, वो कसम भी खाएगा, घर उसका हो जाएगा। ठीक है, वो जो तस्दीक करने वाला है उसको चाहिए कि दूसरे बंदे के लिए अजीजों क्या करे? एक और कसम भी खाए। उसको चाहिए कि एक और कसम भी खाए दूसरे के लिए। तस्दीक करने वाला बंदा, तीसरा बंदा दूसरे के लिए भी कसम खाए। ठीक है, क्या कसम खाए? कि ये इसका नहीं है, इसका नहीं है। अच्छा, अगर वो मुसद्दिक, अगर वो तस्दीक करने वाला कसम नहीं खाता, ठीक है, तो फिर यहां वो दूसरा बंदा जिसकी इसने तस्दीक नहीं की ना, एक की है दूसरे की नहीं की, वो दूसरा बंदा जिसकी तस्दीक नहीं की, वो आता है कहता है मैं कसम खाता हूं ये मेरा घर है, इसने झूठ बोला है, उसके लिए मेरा घर है। अब इस मुसद्दिक को, तस्दीक करने वाले को गरामत उठानी पड़ेगी, ये उस घर की कीमत इसको देगा। क्यों? क्योंकि ये रुकावट बना है ना इस बंदे के और उसके ऐन और घर के दरमियान, ये दरमियान में इसने कोई गवाही दी है, झूठी दी होगी, ठीक है, तो ये पहले के हक में इसने इकरार किया है और ये रुकावट का सबब बना है, लिहाजा इसको जो है ना नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? अगर ये बंदा, भाई तवज्जो रहो, अगर ये बंदा जिसके हाथ में वो घर रह रहा है, अगर दोनों की तस्दीक करेगा कि दोनों का है, छोटे का भी है बड़े का भी है, दोनों भाइयों का है, ठीक है, तो फिर वो दोनों का हो जाएगा, लेकिन दोनों कसम खाएंगे और दोनों का हो जाएगा, या दोनों कसम से इनकार करेंगे फिर भी दोनों का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इन दोनों के लिए ये है कि ये क्या करें अगर जान, ये उस मुसद्दिक को, वो जो बंदा तस्दीक करता है, ठीक है, वो जो घर में रह रहा है, उसको ये दोनों बंदे कसम दें कि तू कसम खा, ठीक है, क्योंकि तुझे इल्म है इस बात का कि किसका घर है, आप ना कसम खाएं, आपको तो इल्म है, आप क्यों मतलब है किसी एक के हक में कहते हो या दोनों के हक में, आपको यकीन है किसका है, ये दोनों, ठीक है, ये उसको कसम भी दे सकते हैं। बड़ी तवज्जो। अच्छा, अगर वही ये दो बंदे गए उसके पास, उसने कहा तुम दोनों का नहीं, मेरा है, सिरे से मुंह कर गया, फिर क्या करेंगे? फिर कहेंगे इसी यानी इस बंदे का जो तीसरा है उसका कौल मुकद्दम है कसम के साथ उसका कौल जो है वो अजीजो मुकद्दम है। अच्छा, अब यहां अगली सूरत ये है कि अगर दोनों
दोनों छोटा भाई बड़ा भाई बैयना लेकर आ जाएं, फर्ज नहीं करना है। ये घर में रह नहीं रहे, घर में एक तीसरा बंदा है कोई, वो रह रहा है, ये दोनों भाई आए और इन्होंने बैयना लाया यहां, तो किसका बैयना को तरजीह दें? उसके बैयना जो आदल हैं, ठीक है, उनको तरजीह दी जाएगी। ठीक, अगर ये अदालत में बराबर हुए तो जिसके शाहिद ज्यादा हैं उसको तरजीह देंगे। अगर अदालत में भी और क्या है जान तादाद में भी बराबर हुए तो फिर क्या डालेंगे? कुरआह डाल लेंगे। ठीक है, फिर कुरआह डाला जाएगा तो जिसके नाम का वो निकला, ठीक है, जिसके नाम का निकला वो कसम उठाएगा और सारा माल ले जाएगा। ठीक हो गई बात अगर जान। ये हमारा एक दूसरी सूरत है तो वैसे बड़ी दकीक, लुत्फन बड़ी तवज्जो करें। सूरत में ये बयान की है कि अगर एक घर में कोई आदमी रह रहा है, कोई आदमी रिहाइश पजीर है और दो आदमी आकर वहां इद्दा करें, एक कहे कि ये मेरा है, दूसरा कहे मेरा है, तो ये किसका होगा? वो जो रह रहा है, वो जिसकी तस्दीक करेगा वो घर उसी का हो जाएगा। अगर ये दोनों की तस्दीक करेगा तो फिर ये दोनों का होगा। अलबत्ता कसम खाने के बाद आधा आधा कर लेंगे, या दोनों ने कसम से इनकार किया फिर भी उनको मिल जाएगा। ठीक है, अगला मतलब ये बताया है कि अगर वो दोनों बाहर वाले, उस घर के जो बंदे दो बाहर हैं और कहते हैं हमारा है, दोनों ने आकर दलीलें कायम कर दी, बैयना लेकर आए, तो यहां आदल को तरजीह दी जाएगी। जिसके गवाह आदल हैं वो मुकद्दम है। अगर वो बराबर हुए तो फिर जिसके शाहिद ज्यादा हैं उसको तरजीह दी जाएगी। वो भी बराबर है तो कूड़ा डाला जाएगा। ठीक है, तवज्जो। वलो खरजा फजुल यद मन सद्दकाहू, मन है यद यदी, फजुल यद, जुल यद वो है, लो खराजा अगर दोनों आदमी खारिज हूं, फजुल यद, जुल यद यानी तसरुफ वाला वो है कौन? मन सद्दकाहू, मन है यद यदी, जिसकी, जुल यद वो है मन सद्दकाहू, मन जिसकी तस्दीक करेगा कौन? है या बेयदही, जिसके हाथ में वो घर है वो जिसकी तस्दीक करेगा वही उसी का तसरुफ होगा। माअल यमीन, अलबत्ता कसम के साथ, व अलल मुसद्दिके अल यमीन लिल आखर, मुसद्दिक तस्दीक करने वाला वो तीसरा बंदा जो घर में रह रहा है, अल यमीनो लिल आखर, दूसरे के लिए ये बंदा मुसद्दिक कसम भी खाएगा कि ये दूसरे का नहीं है। दूसरे के लिए मुसद्दिक ने कसम खानी है। फ़इन इम्तना, अगर मुसद्दिक ने इम्तना किया कि भाई मैं तेरे लिए कसम नहीं खाता, मैं कसम नहीं खाता, ठीक है, कसम का मुसद्दिक ने इनकार किया तो फिर क्या होगा? हलफल आखर, दूसरा बंदा जिसकी इसने तस्दीक नहीं की, हलफल आखर दूसरा कसम खाएगा, दूसरा भी कसम खाएगा। व उग़रिम लहू ले हैलूलतिही बैनहु व बैन इकरार अव्वल, तवज्जो, उग़रिम लहू, उग़रिम कौन? ये मुसद्दिक, ये तस्दीक करने वाला गरामत उठाएगा, लहू उस दूसरे की जिसकी तस्दीक नहीं की, उसके लिए ये मुसद्दिक गरामत और नुकसान उठाएगा। क्यों? ले हैलूलतिही बैनहु व बैन, ले हैलूलतिही क्योंकि ये हायल हुआ है, बैनहु उस दूसरे के दरमियान, व बैना और उसके माल ऐन के दरमियान, ये दरमियान में रुकावट बन गया है। बे इकरार अव्वल, पहले का इकरार करके एक का इकरार कर दिया है कि ये उसका, दूसरे को ऐसे महरूम कर दिया है। ठीक, वलो सद्दकहुमा फहिया लहुमा बाद हल्फिहिमा व नकूलिहिमा, तवज्जो, लो सद्दकहुमा, सद्दका कौन?
وہ جو رہ رہا ہے گھر میں، جو گھر میں رہ رہا ہے، وہ دونوں کی اگر تصدیق کرے گا، لو صدقہما، اگر وہ دونوں کی تصدیق کرے گا، فہی لہما، تو وہ گھر، وہ جو چیز ہے، لہما، وہ دونوں کی ہوگی، بعد حلفہما، ان دونوں کے قسم کھانے کے بعد، اور نقول لہما، یا ان دونوں کے نقول اور انکار کے بعد، وَلَهُمَا إِعْلَافُهُ إِنْ اِدَّعَيَا عِلْمُهُ، وَلَهُمَا، اور ان دونوں کے لیے إِعْلَافُهُ، کہ وہ اس متصرف کو جو گھر میں رہ رہا ہے اس کو قسم دے، لہما، یہ دونوں جو باہر والے آئے وہ کہتے ہیں ہمارا گھر ہے ہمارا، وَلَهُمَا، ان دونوں کے لیے إِعْلَافُهُ، اس متصرف کو جو گھر میں رہ رہا ہے قسم دے، ان ادعیا علمہ، اگر یہ دونوں باہر والے ادعا کرتے علمہ، کہ اس کو تو علم ہے کس کا ہے، قسم کھائے، وَلَوْ أَنْكَرَهُمَا قُدِّرَ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ، اگر یہ بندہ جو رہ رہا ہے لو أَنْكَرَهُمَا، ان دونوں کے لیے انکار کر دے کہ نہ تیرا ہے نہ تیرا ہے، قدم قولہ، تو اس کا قول مقدم ہے بِيَمِينِهِ، قسم کھانے کے ساتھ، یعنی یہ بندہ کہے کہ یہ تو میرا بھائی نہ تیرا ہے، آپ دونوں کیسے میرا گھر لے رہے ہو، یہ ہے ہی میرا، یہ بندہ جو گھر میں رہ رہا ہے ان دونوں کا انکار کر دے تو پھر یہ قسم کھائے گا اور اسی کی بات مقدم ہوگی، لو انکرہما، اگر یہ انکار کر دے ہوما، ان دونوں کا جو باہر سے آئے ہیں، قدم قولہ، تو اس کے قول کو مقدم کیا جائے گا، کس کے قول کو، یا وہ بندہ جو رہ نہیں رہا گھر میں، تیسرا اس کے قول کو مقدم کیا جائے گا بے یمین ہی، قسم کے ساتھ، وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ فَهِيَ لِذِي الْبَيِّنَةِ مَعَ يَمِينِهِ، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں لو خرجہ والی صورت تھے، ٹھیک ہے، یہاں کہتے ہیں لو كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ، اگر ان دونوں میں ایک کے پاس بینہ ہو، ان تمام صورتوں میں، فَهِيَ لِذِي الْبَيِّنَةِ، تو یہ گھر ذِل بینہ کا ہے جس کے پاس گواہ ہیں، مَعَ يَمِينِهِ، قسم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اسی دوسری صورت پہ توجہ رکھو کہ جہاں ایک گھر میں ایک بندہ رہ رہا ہے اور باہر سے دو بھائی چھوٹا بڑا آ کر کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے، پہلی صورت جو ابھی پڑھ رہے تھے اس میں ان کے پاس بینہ نہیں تھا، اب کیا کریں، وَلَوْ أَقَامَاهَا، اگر وہ دونوں بینہ کو قائم کریں، رُجِّحَ الْأَعْدَلُ شَهُودًا، تو جس کے شہود عادل ہیں اس کو ترجیح دی جائے گی، فَإِن تَسَاوُوا فِي الْعَدَالَةِ فَالْأَكْثَرُ شَهُودًا، اگر عدالت میں وہ برابر ہوئے، فَأَكْثَرُ شَهُودًا، تو پس وہ جو شاہد جس کے زیادہ ہیں اس کو ترجیح دی جائے گی، فَإِن تَسَاوُوا فِيهِمَا، اگر وہ برابر ہوں، فِيهِمَا، عدالت میں اور کس میں آگا جان، اس عدد میں، دونوں برابر ہوں، پھر کیا کریں گے، فَالْقُرْعَةُ، پھر قرعہ ہے، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ حَلَفَ وَأُعْطِيَ الْيَمِينَ، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ، پس جس کا نام خارج ہو، فَمَنْ خَرَجَ اسْمُهُ، ٹھیک ہے، جس کا نام قرعے میں نکل آیا، حلف، وہ قسم کھائے گا، وَأُعْطِيَ الْيَمِينَ، اور تمام جو ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا، فَإِن نَقَلَ، اگر اس نے انکار کیا قسم کھانے سے، جس کا قرعہ نکلا ہے انکار کیا، أُعْلِفَ الْآخَرُ، تو دوسرا بندہ قسم کھائے گا، وَأُخِذَ، اور وہ مال کو لے لے گا، فَإِنْ امْتَنَعَا، اگر دونوں کیا کریں، انکار کریں، امتنعا، دونوں قسم کھانے سے انکار کریں، قُسِّمَتْ نِصْفَيْنِ، تو اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، وَقَضَى يَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ رُجِّحَتْ بَيِّنَتُهُ، اسی طرح واجب ہے قسم کھانا من رجحت بینتو، جس کے بینے کو ترجیح دی گئی ہے، دو مثلا بھائیوں نے جو بینہ لائے، ایک کے بینے کو ترجیح دی، جس کے بینے کو ترجیح دی گئی اس نے قسم بھی کھانی ہے، واجب ہے، وَقَضَى يَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى مَنْ رُجِّحَتْ بَيِّنَتُهُ، اسی طرح قسم واجب ہے عَلَى مَنْ، اس پر رجحت بینتو، جس کے بینے کو
ترجیح دی گئی ہے. توجہ. وظاہر العبارت عدم الیمین فیہما، ظاہر عبارت یہ قسم نہیں ہے فیہما، اس قرآن والی صورت میں بھی اور ترجیح بینہ کی صورت میں بھی قسم نہیں ہے. ٹھیک. والاول مختار فی الدروس فی الثانی قطعا وفی الاول میلا. والاول یہ قسم کا واجب ہونا، مختار مصنف دروس میں، فی الثانی قطعا، ثانی یعنی قرآن میں قطعا وجوب قسم ثابت ہے. وفی الاول، اول رجحان بینہ والی صورت میں میلن، مائل ہوئے ہیں کہ یہاں بھی قسم ہے، قسم کی طرف میلان ہے کہ یہاں بھی قسم کھانی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ بات تھوڑی توجہ کر لیں بھلا کیا کہہ رہے ہیں یہاں. والاول مختار فی الدروس فی الثانی قطعا وفی الاول میلا. والاول وجوب قسم مختار مصنف دروس میں، فی الثانی قطعا، ثانی یعنی قرے کی صورت میں قطعا قسم واجب ہے. وفی الاول میلا، وفی الاول رجحان بینہ کی صورت میں مائل ہوئے ہیں قسم کے کہ قسم کھانی وہاں بھی چاہیے. ٹھیک ہو گئی بات آگا جان. مطالب تھوڑے دقیق ہیں، دقت فرمائیں گے. موفق معید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.